welcome back to Colors of Shakti by Vaishnavi. I am your spiritual healer and life architect back with another timeless reading. And this reading is going to be all about what justice is माँ काली going to bring in your life next, coming next. आने वाले टाइम में माँ काली आपके लाइफ में क्या जो है वो जस्टिस लेके आने वाली है. And telling you more about my connection with her. like I am connected to Makali since my birth. It's not like something which uh, it's it's basically not something which I have inculcated or uh, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे लिए बहुत नई है. मेरी बर्थ के टाइम से मैं उनसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हूँ. बिकॉज देयर वॉज अ टाइम basically in my teenage where I was in a situation. I almost felt like कि मुझे एक ऐसे डार्कनेस में चीज़ें मेरे लिए मतलब कुछ है ही नहीं मतलब लाइफ में. ऐसी टाइप की सिचुएशन मैंने फेस की है. एंड दैट इज़ द टाइम, वो टाइम था जब व्हेन आई कनेक्टेड टू माँ काली. एंड शी गेव मी सो मच. वो जो एक बेसिकली स्ट्रिक्ट मदर होती है जो चीज़ें लेसन्स आपको सिखा कर ही रहती है. मतलब आप कितना भी किसी से अटैच हो लो, कितना भी किसी से कुछ भी मतलब कनेक्शन रख लो, बट वो ऐसी है कि वो आपके सामने चीज़ें लेकर आएगी, मतलब आएगी. आपको वो लोगों की वो रियल फेसेस, वो चीज़ें सब दिखा कर ही रहेगी. ऐसी काइंड ऑफ उनकी एनर्जी है. एंड गोइंग बैक, मुझे ये चीज़ें बाद में पता चली. आई एम कनेक्टेड टू हर फ्रॉम बर्थ. So basically, I was someone my parents were not able to have a child, and when they asked Ma Kali for having a child after 4 years, or I think after 2-3 years, they conceived me. And after that, I used to feel, why do I feel this, कि मुझे ये कनेक्शन क्यों फील होता है कि इट्स वो नई नई है मेरे लिए. बाकी के गॉड गॉडेसेस इट्स बहुत पसंद है मुझे. डिफरेंट सभी हमारे जो हिंदू गॉड गॉडेसेस हैं उनकी एनर्जीज से कनेक्ट करना. बट उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है ना, वो वो मतलब अनएक्सप्लेनेबल है. ऑलमोस्ट मुझे फीलिंग आती है आई बिलोंग टू हर. मैं उनका एक पार्ट हूँ. ऐसी काइंड ऑफ मेरी सोल फील करती है. एंड ये चीज़ें मुझे बहुत लेट पता चली, जब आई वॉज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड. लाइक one of the thing one sometimes I just feel um, like there are there has been so much so many times मैं उनसे मेरा कनेक्शन कटा है. मैंने उनका हाथ बहुत बार छोड़ा है, बट माँ काली ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी and that kind of support she gives me, like a real physical person who's there in front of you, that is something very special for me. And talking about the backstory, um, so it was मुझे अभी 1-2 महीने पहले my grandmother told me that I was not someone who wanted to come on this earth, but I was someone who asked to Ma Kali that we want to bring a child in this world. She was someone who मन्नत मांगी, ताकि मेरी मॉम कंसीव कर सके एंड ऑल. So this story goes back then. I got to know it very late, 2 months ago. I got to know that it is something like that she asked for having me, and it was so special, and everything just made sense. Why I feel such a strong connection to her, why I feel such a strong connection to Ma Kali, everything just made sense for me. And abhi bhi there were few years when I was not connected to her, and
in upcoming time, I am someone who is looking forward to like know her, uh, like be with, I just want to be with her, like I just want to be in her vicinity, I just want to have her. I don't want anything else in my life, is what I feel. But let's see how it goes. If she has, if she has made me so privileged to, stay in a certain setting and help few people, it's my duty to ensure like whatever I can give, whatever my skills are, I am delivering that in a very fair way. And yes, go ahead and choose your piles, or groups. We can say groups, you can choose your groups, and I'll be seeing you in your reading. All the links to the personal readings are given in the description, and if you want me to guide you personally. And let's start. हेलो पाइल वन, इफ़ यू चोज पाइल वन, अगर आपने पाइल वन चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। एंड लेट अस सी कि आने वाले टाइम में माँ काली ग्रुप वन के लिए क्या जस्टिस लेके आने वाली है उनके लाइफ में। आने वाले टाइम में माँ काली क्या जस्टिस लेके आने वाली है उनके लाइफ, ग्रुप वन के लाइफ में। ओके ओके, स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे एनर्जी उन लोगों की आ रही है जो समवेयर वो जिन भी सर्कमस्टांसिस में या फिर जिन भी लोगों में वो रहते हैं, वो बस थक चुके हैं कि मतलब वो उन लोगों से थक चुके हैं किसी ना किसी तरह से। लाइक बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जो यू नो ये ट्रिक्स एंड पॉलिटिक्स काइंड ऑफ सिनेरियोज में बहुत इजीली फंसते होंगे। एंड बेसिकली आपको समझ नहीं आता होगा कि डील कैसे करें, मतलब लाइक अगर कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल आपको तंग कर रहे हैं तो उनसे डील कैसे करना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड आने वाले टाइम में माँ काली आपको ऐसा स्ट्रेंथ देगी कि आप इतना इजीली मतलब समझ पाओगे कि नेविगेट कैसे करना है। अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही है, अगर कोई चीज़ आप पे लाइक दबाव डालने का ट्राई कर रही है किसी ना किसी तरह से, आपकी फैमिली हो सकती है, सर्कल हो सकता है, सोसाइटी में कुछ लोग हो सकते हैं, आपको बस नेक्स्ट कमिंग 8 मंथ्स में माँ काली इतना स्ट्रेंथ, इतना मतलब बल दे रही है कि आपको चीज़ें छोटी लगने लगेंगी। लाइक जो भी चीज़ आपको अभी बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, लाइक जिस भी टैक्टिक्स का पार्ट आप बन चुके हैं, जिस भी लोगों के लाइक गंदे लाइक षड्यंत्र बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसका पार्ट बन चुके हो, आपको ये चीज़ें ना आने वाले कमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगेगी। एंड समवेयर आपकी स्पिरिचुअलिटी एनहांस होती है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी एनहांस होती दिख रही है। लाइक आप जो भी डेली प्रैक्टिसेस करते हो वो एनहांस होते दिख रही है, तो आपको ये चीज़ें छोटी लगने लगेगी। एंड यू कैन सी दिस एलिफेंट, एंड एलिफेंट इज ऑल्सो समथिंग which connects a lot to like wisdom, like जिसको हम हिंदी में एक जो नोइंग होती है, जो करंट सर्कमस्टांसेस से भी ऊपर होती है। आपको पहले ही वो चीज़ें मतलब वो फीलिंग आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। ये परखने की क्षमता जो है वो माँ काली आपको अगले नेक्स्ट 8 मंथ्स में दे रही है। एंड समवेयर आप ऐसे बन जाओगे कि आप जहाँ जाओगे वहीं पे लाइक ढलना एंड रिस्क लेना, रिस्क कैपेसिटी भी आपकी बढ़ने वाली है इन नेक्स्ट कमिंग 8 मंथ्स। लाइक आप रिस्क बहुत लोगे। कोई भी
कोई भी सर्कमस्टांसिस में आपके बहुत सारे फियर्स है, लाइक आप अब बहुत सारी चीज़ों से डरते हो, बट वो आपको इतना फ्री फ्लोइंग और वो आपको इतना मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी इतनी बढ़ाने वाली है ना कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लाइक आप एकदम मस्त मस्त मौजी, जो भी बाहर चीज़ें चल रही है आप बस मेक श्योर करोगी कि आप सही हो और आप ठीक से खुद का ध्यान रख रहे हो, खुद को मेक श्योर कर रहे हो कि आप खुश हो। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो आ रही है। लेट अस सी मोर माँ काली ग्रुप 1 के लिए क्या जस्टिस लाने वाली है इन अपकमिंग टाइम। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे और एक बार दिखा। ओके, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी वो आती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली रिगार्डिंग योर सोशल लाइफ। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी सोशल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते, लाइक हाउ विल योर सोशल लाइफ बी, हाउ कैन यू इन्हांस इट, एंड लोग बेसिकली मे बी आपकी ऐसी टेंडेंसीज हो सकती है जहाँ पे आप पीपल प्लीजिंग में ज़्यादा एंगेज करते हो, लाइक एंगेज लाइक लोगों को प्लीज़ करना आपकी बेसिकली हैबिट हो चुकी है। आपको बेसिकली उन लोगों के बारे में लाइक बहुत चीज़ों के बारे में उनके बारे में क्लैरिटी समझ में आएगी, जिसकी वजह से आई ऑल्सो फील कि आप डिटैच थोड़े से हो जाओगे। लाइक आई डोंट सी कि आप कंप्लीटली डिटैच हो जाओगे, बट एक नोइंग आपको आएगी कि बाबा ये लोग जो है वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या फिर किन के साथ आपको रहना है, किन के साथ नहीं रहना है, या फिर किसी के साथ नहीं रहना है। कुछ भी लाइक वैसी चीज़ें हैं वो आपके सामने आने वाली है इन कमिंग 8 months। एंड आप कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा लाइक शार्प होते दिखाई दे रहे हो। आपके 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 बेसिकली थॉट्स में वो क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट इज़ क्या चीज़ जो है वो सच है और क्या चीज़ जो है वो झूठ है। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी है कि थॉट आएगा ही ऐसा कि ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ सही है, इतनी क्लैरिटी आपको आने वाली है। एंड कम्युनिकेशन में भी आप थोड़ा सा आपका लेस कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, बट वो कम्युनिकेशन शार्प रहेगा और ऐसा रहेगा कि सामने वाला मतलब एकदम चुप ही हो जाए, मतलब चुप ही कर दो अगर वो आपसे कुछ ट्राई करता है टू मैस अप विथ यू, समथिंग लाइक दैट। एंड अभी जो है आपको डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, आप ना स्टक दिखाई दे रहे हो, आपकी एनर्जीज जो है वो स्टक दिखाई दे रही है। लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन ले, कौन सा डायरेक्शन ना ले। एंड नो दैट जो स्टकनेस आप जो फेस कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपने भी अ, वो नो दैट वो आपके ही थॉट्स है। अगर आप वो थॉट से ओवरकम कर लोगे ना, दैट इज द स्टकनेस। थॉट से ओवरकम कर गए हो, दैट स्टकनेस विल ऑल्सो गो। बट देर आर सम थॉट्स जो आपको होल्ड मतलब एक कदम पीछे लेने के लिए, मतलब एक कदम पीछे आपको रखते हैं, लाइक आपको एक्शंस नहीं लेने देते या फिर स्टक रखते हैं। वैसे काइंड ऑफ थॉट्स के बारे में भी आपको खुद के बारे में पता चल सकता है। एंड डेफिनेटली काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हो आप खुद खुद के ऊपर कि थॉट्स को और कैसा बेटर किया जाए। सो यस, गाइडेंस देख लेते हैं माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, तो कहीं ना कहीं माँ काली बोल रही है कि पास्ट की सिचुएशन से मूव ऑन करो। लाइक आप देख सकते हो कि इस पर्सन ने लाइक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इन द कार्ड, एंड द पर्सन इज मूविंग ऑन। एंड स्टोरी भी जो इस कार्ड से रिलेटेड यही है कि टाइम जो है वो सही नहीं है, बट मूव ऑन करना या फिर उसको हील करना या फिर वो गैप जो है वो क्रॉस कर देना ना इम्पॉर्टेंट है। कि आपका पास्ट और आपका फ्यूचर कभी भी सेम नहीं हो सकता, ये टू डिफरेंट चीज़ें हैं लाइफ की। एंड दीज टू थिंग्स कैनॉट बी सेम ऑफ सेम नेचर। आपने पास्ट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल लाइफ, दैट आई कैन सी। बट नो दैट इट डज नॉट मीन कि आपका फ्यूचर जो है वो वैसा ही होगा, या फिर आपका फ्यूचर जो है वो वैसा ही पैन आउट होगा जैसा आपका पास्ट था। क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी ले लोगे अपनी खुद जो भी चीज़ें रॉन्ग गई थी उससे आप लेसन्स लर्न करोगे, तो वो चीज़ें फिर
फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी आपके लिए। ये गाइडेंस भी है कि आपको सेम लेसन्स रिपीट नहीं करने हैं। किसी चीज़ से आपको लेसन मिला है, किसी सर्कमस्टांसेस से या फिर किसी सिचुएशन से, उसको लर्न करो। मतलब डोंट स्टे स्टक, वो सेम लेसन्स में बार 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 स्टक मत रहो। सो यस, ये थी गाइडेंस आपके लिए ग्रुप 1। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल बी सीइंग यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। सो बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये है आपकी रीडिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो लिंक्स जो है बुकिंग्स के वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट अस स्टार्ट विथ योर रीडिंग कि माँ काली जो है वो आपके लाइफ में क्या जस्टिस लेके आने वाली है इन अपकमिंग टाइम। ओके, फॉर ग्रुप 2। ओके, सो कहीं ना कहीं आप जो है, आपको क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते रहेंगे। लाइक क्रिएशन इन द सेंस इट कैन बी जस्ट डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन बिजनेस, या फिर कोई चीज़ को बनाने में या फिर कोई चीज़ को क्रिएट करने में ना, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी। एंड वो ब्लॉकेज जो है वो माँ काली आपकी लाइफ में से निकाल रही है नेक्स्ट कमिंग 15 मंथ्स। बस आपको बोला जा रहा है कि चीज़ें जो है ना, वो आप जो भी काम कर रहे हो या फिर जो भी आप अभी परस्यू कर रहे हो, उसको ऑथेंटिक तरीके से करनी है। लाइक आप आने वाले अगले 13 से 15 महीने में, या फिर यू कैन से 13 to 15 months, आपको आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देगी इन अ वे वेयर आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें मैं पास्ट में नहीं कर पाता था स्मूथली, बट ये चीज़ें अभी स्मूथली मेरी लाइफ में हो रही है। फॉर मैनी ऑफ यू ये चीज़ जो है वो फाइनेंसेस हो सकती है जो स्मूथली नहीं हो रही है, या फिर ये चीज़ जो है वो किसी तरह का स्केलिंग अप हो सकता है। लाइक आप किसी चीज़ में स्केल करना चाहते हो, और बहुत लोगों के लिए ये एक मतलब इट्स लाइक हैविंग अ फैमिली जो स्टेबल हो, लाइक हैविंग चिल्ड्रन एंड काइंड ऑफ थिंग। अगर आप अपनी फैमिली भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, बट देर इज़ अ इशू इन दैट, वो चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है विद द ग्रेस ऑफ माँ काली। एंड वो बस आपको बोल रही है कि आपको बस चीज़ें ना ऑथेंटिक तरीके से करनी है। और अपने रूट से कनेक्टेड रहना है, इज़ वॉट शी इज दिस इज़ वॉट शी इज सेइंग। लाइक जितना आप अपने रूट से कनेक्टेड होगे ना, आप अपनी जो फैमिलीज में वो जो रिचुअल्स चले चले आते हैं उसको जितना आप, लाइक हर फैमिली में अलग रिचुअल्स रहते हैं, किसी का भी सेम चीज़ नहीं रहती है। बट उन चीज़ों को जितना आप इम्पोर्टेंस दोगे, उन चीज़ों को आप जितना फॉलो करोगे, उतना आपको चेंजेस दिखाई देंगे। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप अपनी रूट्स को भूल चुके हो, आप अपने ट्रेडिशंस को भूल चुके हो। एंड जो भी आपका ट्रेडिशन है, नो नो रिलीजन, दीज रीडिंग्स आर नॉट रिलीजन स्पेसिफिक। जो भी आपका रिलीजन है, या फिर आप रिलीजन में भी नहीं बिलीव करते, लाइक यू जस्ट बिलीव इन सम हायर फोर्स और सम एनर्जी दैट इज वर्किंग। सो ऐसे भी चीज़ें हो सकती है, बट जस्ट स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स इज वॉट शी इज टेलिंग। एंड चेंजेस बहुत सारे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी, और स्पेशली मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रही है इन अ गुड वे। लाइक इनिशियली आपको कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूटेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि ये चीज़, अरे यार ये चीज़ इतने ये लोग या फिर ये चीज़ में मेरे पास कितने साल से थी बट ये चली गई, तो थोड़ा सा बुरा आपको लग सकता है, बट नॉट ऑलवेज। क्योंकि जो मिलेगा आपको उसके बाद, एक चीज़ जाने के बाद, वो इतना इतना ब्यूटीफुल होगा कि आपको समझ में आएगा जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई। सी व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक इनवाइटिंग न्यू एनर्जीज इन योर लाइफ, लाइक हम जब बात करते हैं न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट करने की, तो कहीं ना कहीं हमको ओल्ड चीज़ें लाइफ में से निकालनी पड़ती है न्यू चीज़ें लाने के लिए। एंड प्रैक्टिकली मैंने ये कब एक्सपीरियंस किया है। आई वॉज अ पर्सन हु हैड अ लव, मतलब मैं अपने कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड
मेरे ऑलमोस्ट सभी लाइक बचपन से मेरे ऑलमोस्ट सभी जो कपड़े हैं वो सब ब्रांडेड एंड ऐसे है कि यू कैन नॉट, मतलब मैं उनको जल्दी से फेंक नहीं सकती। एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं उनको जल्दी से बेसिकली फेंक नहीं सकती, वो इतने अच्छे क्वालिटी के और इतने अच्छे थे। सो मेरी ना एक अटैचमेंट हो गई थी मेरे कपड़ों से, लाइक कोई भी उनको छू नहीं सकता है, नो वन कैन बेयर इट। एंड वेन एवर माई सिस्टर ऑल्सो यूज टू लाइक टेक माई क्लोथ्स, लाइक मैं लाइक भड़क जा, अभी भी मैं भड़कती हूँ बेसिकली। तो मुझे गुस्सा बहुत आता है लाइक। तो मैंने ना लास्ट 2-3 मंथ्स में एक चीज़ की, मेरे जो वार्डरोब में कपड़े थे ना, आधे कपड़े जो नहीं, मतलब मेरे को है कि निकालने ही है, निकाल के फेंक दिए बस। वो निकाल दिए और वो ऐसे भी नहीं वो ख़राब हो चुके, 1-2 बार ही पहना है उनको, बट वो मैंने बस दे दिए किसी को और वो एक स्पेस क्रिएट कर लिया अपने वार्डरोब में। एंड यू डोंट बिलीव कि नेक्स्ट डे से माय मॉम इज सेइंग लाइक बाय न्यू क्लोथ्स, ये ले पैसे, ये बाय कर ले बस ना, मतलब गो टू शॉपिंग, हैव न्यू क्लोथ्स एंड ऑल। एंड even I am that capable, I can do my things by myself, but it is like you cannot like basically attract new things when you don't create spaces. So वो चीज़ें इजीली होना स्टार्ट हो गई, लाइक एक बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ऑफ क्रिएटिंग अ स्पेस। सो यस, let us see more what is the justice you will get in upcoming time. What is the justice Makali will bring in upcoming time for you? Okay, so somewhere kahin na kahin you are being protected from people who are trying to cheat you in a way, who are basically trying to put you down in a competition or in जो जो भी पर्सन लाइक आपके साथ लाइक कॉम्पिटिटिवनेस लेकर आएगा वो बेसिकली डिफीट हो जाएगा। इस ये ब्लेस भी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बेसिकली। ये ऐसी ब्लेसिंग आपके लिए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में लेके माँ काली आपके लाइफ में लेके आने वाली है। एंड ये इतनी मतलब इतना फास्ट होगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा, लाइक यू नम हो जाओगे बेसिकली, आप शॉक हो जाओगे, नम हो जाओगे, साइलेंट हो जाओगे कि अचानक से क्या हुआ कि पीपल जो जिन्होंने मतलब आपको चीट किया है या फिर जिन्होंने भी आपको डिसीट किया है या फिर एक दो दो मुखी जिसको बोलते हैं वैसा काइंड ऑफ एनर्जी जो जिन्होंने भी आपको दिखाई है, ऐसा क्या हो गया है कि ये लोग अपने लाइक इतना खराब हो गया है इनका। लाइक हम लोग लाइक खुश नहीं होना चाहिए, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, लाइक these people who have betrayed you in some or another way, I see them regretting, I see them facing similar things in their life. So it is the justice that she is bringing in your life. Let us see guidance, like let us see the guidance. What is the guidance? What is the guidance for group 2? ओके, सो अगले लाइक 4 महीने में या फिर 4 इयर्स में आपकी लाइफ में इतने सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, इतने सारे मौके मिलने वाले हैं आपको जहाँ पे आप खुद को सेलिब्रेट करो, अपने आसपास के लोगों को सेलिब्रेट करो। तो महाकाली बोल रही है आपको कि जहाँ भी लगे, लाइक किसी भी फीमेल को या किसी भी नॉट इवन फीमेल या फिर किसी भी मेल को, किसी किसी को भी आपकी ज़रूरत है, बी देयर फॉर देम एंड उनकी हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि वो आपको ब्लेस करेगी टू अर्न दैट गुड डीड। वो पुण्य कमाने का वो आपको मौका देगी कि आप हेल्प करो लोगों को, जिस भी जो भी इंसान दिखे उसकी हेल्प करने का मौका देगी, तो वो ज़रूर करना। एंड सेलिब्रेशंस बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये आपके लिए एक विक्ट्री या फिर एक मैरिज को भी सिग्निफाई कर रहा है। लाइक आपकी मैरिज हो सकती है या फिर आपके फैमिली में कोई एक नया न्यू बॉर्न बेबी आ सकता है। बस आपको सेलिब्रेशन के मौके मिलेंगे तो उसको बहुत अच्छे से जी लेना, बस ये आपको माँ काली बोल रही है, क्योंकि लाइफ में चेंज तो आएगा ही, चेंज आना इज़ द नेचर ऑफ यूनिवर्स, बट वो आपको बोल रही है कि वो आपको खुशी भी उतनी देगी कि आप फुल्ली एंजॉय कर सको।
सो यस, ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड all the links to the personal readings are given in the description, so I'll be seeing you in your next reading. So bye.